Good morning, friends. Now today we will see about the Venn diagrams. How to find the set or how to represent the set diagrammatically. So here the relationship between the sets, that is the union of the set, intersection of the set or the complement of the set, subset of the set. These are some relationship between the two or more sets. This relationship can be represented diagram same is known as Venn diagram, and is set represented by the diagram. This diagram is called the Venn diagram, right? So if you want to represent it in the Venn diagram, then universal set is represented by the rectangle. आपको याद रखना होगा कि जब भी यूनिवर्सल सेट आएगा वी विल यूज रेक्टेंगल. यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे. देन इट्स सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल. उसके जो सबसेट है दैट इज वो यूनिवर्सल सेट के रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बनाएंगे. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल. यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल एंड बाकी के सारे जो सेट दिए हैं जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है दैट इज बाय द सर्कल and element of the set is written in that circle. वो कैसे लिखने हैं that is will explain by the example. Now here U is 1 to 10, that is the universal set. A is 2, 4, 6, 8 and 10. B is 4 and 6. So here universal set is represented by the rectangle. So here I will draw a rectangle and it is in the one corner will write U. किसी भी एक कॉर्नर में आप U लिखेंगे. That means this rectangle is represent the universal set. Then here A is one circle. Here is A. The element of A will write in this circle so that 2, 4, 6, 8 and 10. डॉट करके फिर वो नंबर लिखेंगे. दैट इज ए. नाउ बी इज 4 and 6. बट 4 and 6 तो ए के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं. दैट मीन्स यू कैन से दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए. देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी. मतलब कि ए पूरा का पूरा सेट बी में आ जाता, बी पूरा का पूरा सेट ए में आ जाता है. So that you can say that here is the element of B. This one is B. ये B है. A का पूरा B is subset of A. So you will draw like this. This is what? B. ये B है. Right? Then A के एलिमेंट अंदर आ गए. B के एलिमेंट भी 4 and 6 हो गया. Now आपको क्या दिखाना है? U के रिमेनिंग एलिमेंट. अगर U के सारे एलिमेंट A एंड B में आ गए हैं देन इट इज ओके. बट यहाँ पे 1 इज रिमेनिंग. जो A एंड B में नहीं है ऐसे एलिमेंट को हम बाहर लिखेंगे बट इन U रेक्टेंगल के अंदर. सो दैट 1 फिर 2 आ गया, 3 इज रिमेनिंग, 4 आ गया, 5 इज रिमेनिंग, 6 आ गया, 7 इज रिमेनिंग, 8 आ गया, 9 and 10 is there. So this way जो यूनिवर्सल सेट है उसके रिमेनिंग एलिमेंट ये सर्कल के बाहर आपको रिप्रेजेंट करने हैं एंड ए एंड बी के एलिमेंट जो सर्कल के अंदर करने हैं बिकॉज ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यू. और सबसेट है तो वो सेट के अंदर आ जाना चाहिए. दैट यू कीप इन माइंड. So this is all about the Venn diagram. So when different situation को हम Venn diagram में कैसे represent करते हैं that we will see. First you make a note of that. Venn diagram में another example is suppose A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 3, 4, 5 and 6. And you have to find the A union B and A intersection B and represent it in the Venn diagram. तो अगर ऐसे करना है first we will find A union B. How to find that A union B is equal to? दोनों को mix करो. That is 1, 2, 3, 4,
5 and 6. Then you will find A intersection B. Which is the common element here? 3 and 4. Now if you want to represent this two situation in a Venn diagram, you have to represent in two different diagrams. आपको दो different diagrams बनाने हैं. So कैसे बनाएंगे? First of all, if universal set is not given, then also you have to write this. नहीं दिया है फिर भी draw तो करना ही है, right? Then A and B दोनों को यहाँ दिखाएंगे. कैसे दिखाना है? तो here is the A and here is B. क्यों? क्योंकि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमन एलिमेंट है मतलब दोनों में है तो दो बार नहीं लिख सकते. सो वी हैव टू राइट दैट इन बिटवीन. तो ये 3 and 4 दोनों में है तो हम दो बार नहीं लिखेंगे और इसके लिए यहाँ पे 3 and 4 लिखेंगे. यू अंडरस्टैंड दैट? दैट मीन्स जो कॉमन एलिमेंट है वो बीच में आएगा. देन हियर इज रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A 1 2 and here is remaining element of B, that is 5 6. Right? Now A union B जिसे आपको रिप्रेजेंट करना है तो A यूनियन B का रीजन क्या होगा? तो जो एलिमेंट सारे के सारे आ जाते हैं यूनियन में तो पूरा का पूरा ये रीजन A यूनियन B कहलाएगा. क्योंकि उसमें पूरा सेट A एंड पूरा सेट B आ जाता है तो जो आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय द शेडेड रीजन तो यूनियन में पूरा का पूरा सेट आएगा. और अगर आपको इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करना है, दिस इज U, हियर इज A B, कॉमन एलिमेंट है 3 4, द रिमेनिंग एलिमेंट इज 1 2, हियर इज 5 6. Now if you want to represent a intersection B, तो वो कैसे करेंगे? तो जो कॉमन एलिमेंट है वो ही इंटरसेक्शन में आता है. It means here it is the common region of this shows A intersection B. You understand that? So अगर आपको यूनियन को रिप्रेजेंट करना है तो A and B होल आ जाएगा. बट इंटरसेक्शन को करना है तो ये बीच का ही एलिमेंट जो है, जो कॉमन एलिमेंट है, जो कॉमन रीजन है वो इंटरसेक्शन में आता है. सो दिस आर द टू सिचुएशन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन. राइट? बाय दिस वे वी प्रेजेंट दिस यूनियन एंड इंटरसेक्शन हियर. बट सपोज अगर आपको ऐसा दिया गया है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन, अगर मैंने एक एग्जाम्पल ऐसे लिया दैट A इज B and C is equal to 7 8 and 9. Now what? Now if you take A intersection C, तो A and C में तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, so it becomes the null set. और जब इंटरसेक्शन में आपको नल सेट चाहिए देन A इंटरसेक्शन C कैसे बनाएंगे? हियर A, हियर C, U, हियर इज 1 2 3 4 7 8 9. व्हाई दिस टू सेट इज सेपरेट? बिकॉज इंटरसेक्शन में मतलब कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन इज नल सेट, देन दिस टू आर डिसजॉइंट सेट. और वो डिसजॉइंट सेट है तो वो दोनों को अलग अलग दिखाएंगे. यू अंडरस्टैंड दैट? दैट मीन्स व्हाट? हियर इज द रिप्रेजेंट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. इफ एनी कॉमन एलिमेंट है देन यू विल राइट द कॉमनली, ये जॉइंट ड्रॉ करेंगे, अगर डिसजॉइंट है तो दो अलग अलग ड्रॉ करेंगे. सो दिस वे यू रिप्रेजेंट इज इन द वेन डायग्राम. मेक अ नोट, देन विल गो अहेड फॉर द कॉम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, राइट? एंड फॉर 3 सेट है. देन अगर A, B and C is given, तो here I will write 4 5 6 and 7, A, B and C. Now you want find A intersection B intersection C, A union B union C.
Now what is it? How to represent this three set in a Venn diagram? So it is U, here is A, B and C. Now A 1 2 3 4, B 3 4 5 6 and C 4 5 6 7. अभी तीनों में कॉमन कौन है? 4 इज देयर. सो जो तीनों में कॉमन है वो बीच में आएगा. अभी A एंड B में कॉमन कौन है? 3 एंड 4. तो 4 इज ऑलरेडी देयर. रिमेनिंग 3 यहाँ बीच में आ गया. B एंड C में विच इज कॉमन? 4 5 6. उसमें से 4 आ गया तो यहाँ पे 5 एंड 6 इज देयर. A एंड C में कॉमन क्या है? ओनली 4. वो तो ऑलरेडी आ गया है, राइट? पहले आप कॉमन एलिमेंट लिखेंगे. देन व्हाट इज A? 1 2 3 4. तो 3 and 4 is already there. So 1 and 2 you will write it here. Then 3 4 5 6. 3 4 5 6 B में ऑलरेडी है. C में 4 5 6 7. 4 5 6 and 7 is remaining. जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे. Otherwise, U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Suppose U is given. Then 1, 2, 7 इसमें आ गया. 8, 9 and 10 यहाँ नहीं आया है but U में है. तो you will write 8, 9 and 10. You understand that? Now I want to show A intersection B intersection C. मतलब कि तीनों में कॉमन एलिमेंट कौन है? 4 है. So here is 4. Now what is it? Represent that between here. This is the A intersection B intersection C. ये A intersection B intersection C है. But whenever here if you want to find A union B union C, U A B C. तो here is 4, यहाँ पे है 5 6, यहाँ पे है 7. This is B, this is A, here is 3, here is 1 2, right? Okay. Now A union B union C. A union B union C क्या हो जाएगा? तीनों का मिलन. मतलब कि 1 2 3 4 5 6 and 7. सब एलिमेंट ऑफ ABC is in A union B union C. तो तीनों को रिप्रेजेंट करो like this. This is A union B union C. Represent that here is the union, here is the intersection. अगर दोनों में A intersection B बोला है तो ये आएगा. B intersection C बोला है तो ये आएगा. A intersection C बोला है तो ये बीच का आएगा. You understand that? Yes. So this way we can intersection मतलब कि common और union मतलब the whole. ऐसे आपको represent करना है. Make a note, then we'll go for the complement. A is equal to 1 2 3 4 5 6. B is equal to 2 4 6 8. Now you want to find A minus B and B minus A in the Venn diagram. So here A minus B is equal to A में से B के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो. So 2 4 6 8 अगर सब्ट्रैक्ट होता है 1 3 and 5 is there. Now if you want to represent that in the Venn diagram, then U here is A, here is B. Now what? A का एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट कौन से है इसमें? 2 4 and 6. तो we will draw, जरा बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं. Here it is like this. Here is A, here is B. 2 4 6. This is the common element जो बीच में लिखेंगे. Then 1 3 5. Here is 8. Now you want to represent this A minus B here. तो उसका कौन सा रीजन आएगा? तो A में से B के एलिमेंट को माइनस करेंगे. तो
जितना ए में जितना बी का पोर्शन आता है वो रिमूव कर दो. तो हियर बी में से ये बी माइनस कर दिया. तो व्हाट इज हियर? दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी. बट इफ यू वांट टू फाइंड बी माइनस ए, अभी आपको बी माइनस ए करना है, मतलब कि बी में से ए को रिमूव करो. तो ए में कौन से एलिमेंट है? 2 इज रिमूव्ड, 4 इज रिमूव्ड, 6 इज रिमूव्ड, देन इट इज 8. मैंने बी में से एक ही एलिमेंट को रिमूव किया है. नाउ इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट ऑन द डायग्राम, दैट इज यू, हियर इज ए, here is B. 2, 4, 6, 1, 3, 5 and 8. अभी B माइनस ए है तो B में से जो A का पोर्शन है उसे निकाल दो. तो क्या रह जाएगा बाकी का पोर्शन? ये दैट इज कॉल्ड B माइनस ए. सो ये A माइनस बी, ये B माइनस ए, हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मेक अ नोट ऑफ दैट, देन विल गो अहेड. Here u is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is 3, 6. B is 3, 4, 5. Now you want to represent this all in the Venn diagram. So first of all, A complement क्या हो जाएगा? तो 3 और 6 को रिमूव करेंगे, 1, 2, 4, 5. And B complement क्या हो जाएगा? तो U में से 3, 4, 5 को रिमूव करेंगे, will become 1, 2 and 6. Right? Now if you want to represent that here, तो U है, ये है A. Now A में 1, A में है 3 and 6. तो U के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो A के बाहर ले लेंगे. That is 1, 2, 4, 5. Now this represent A, circle represent A. तो सर्कल के बाहर का जो पोर्शन है, that means the element which is not in A but present in U. So this is the portion which is represent A complement. और अगर आपको B complement बनाना है, then here U, this represent B, उसमें है एलिमेंट 3, 4, 5. तो 3, 4, 5 के सिवा 1, 2 and 6 present in U. So that 1, 2, 6 in U. Now B complement मतलब B में नहीं है ऐसे U के एलिमेंट. So U के बाहर के एलिमेंट आ जाएंगे. That represent B complement. Right? Now A union B complement. So first of all you will find A union B. Now what is A union B here? That is 3, 4, 5, 6. Right? Here is 3, 4, 5, 6. Then A union B का complement क्या हो जाएगा? What is it? A union B complement is 3, 4, 5, 6 remove करो तो becomes 1 and 2. Now what? Here is A, B and U. चलो A के एलिमेंट है 3, 6, B के एलिमेंट है 3, 4, 5. जो कॉमन एलिमेंट है वो तो बीच में आ जाएगा. 3, 6, A is over. 3, 4, 5, B is over. 3, 4, 5 and 6 आ गया. तो यहाँ पे 1 and 2 remaining in U. 1, 2 एलिमेंट हो गए. Now you want to represent, अगर ये यूनियन बी रिप्रेजेंट करना था तो ये अंदर का सारा आ जाता, पूरा का पूरा दोनों सेट. बट मुझे तो ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए. तो मतलब कि जहां 1, 2 लिखा है वो रीजन आना चाहिए. 1, 2 यहाँ लिखा है मतलब कि ये ए यूनियन बी के सिवाय बाहर के एलिमेंट. सो दैट इज हियर. दिस रिप्रेजेंट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. मतलब कि यूनियन को निकाल दिया, बाकी का U का सारा पोर्शन ले लिया. If I want to find A intersection B complement, then what?
Here it is. First you find A intersection B. What is A intersection B? What is the common element? 3. So here is 3. Then A intersection B complement. तो 3 को U में से remove करो. 1, 2, 4, 5, 6. Now you represent that on the Venn diagram. U, A, B. Here is 3, 4, 5 and here is 6. 1 and 2. Now what is A intersection B? So if you want to represent A intersection B, then here बीच का एलिमेंट आएगा, बीच का रीजन आएगा. बट हियर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए. देन व्हाट इज इट? तो कॉम्प्लीमेंट में 1, 2, 4, 5, 6 जहाँ है वो एलिमेंट आएंगे. 1, 2 मतलब ये बाहर का, 4, 5 मतलब ये, और 6 मतलब ये. कौन सा एलिमेंट नहीं है? 3 नहीं है. 3 नहीं है तो A इंटरसेक्शन B जहाँ है उसे एलिमिनेट करो. तो इसके सिवाय ये बीच का नहीं लेंगे, बाकी का सारा जो है रीजन दैट इज इन द, ये पूरा आ जाएगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में. A यूनियन B में जो आता है उसके सिवाय का सारा A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में आता है. A इंटरसेक्शन B में ये आता है तो उसके सिवाय का सारा पूरा का पूरा A इंटरसेक्शन B में कॉम्प्लीमेंट में आता है. यू अंडरस्टैंड दैट? सो दिस वे कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सेट है वो नहीं लेना है, बाकी का सारा रीजन उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा. दैट वे यू कैन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट इन द वेन डायग्राम. राइट? ओके, सो डू इट, देन विल गो अहेड फॉर द नेक्स्ट. एक्सरसाइज 1.5 में हमने कुछ रिमेनिंग बाकी रखा था जो कि डिपेंड्स ऑन द वेन डायग्राम है. दैट विल डू इट हियर. Exercise 1.5, question number 5. Here is, draw the Venn diagram for each of the following. Draw Venn diagram for each of the following. Number 1 is A union here B complement. The element is not given here. You just have to represent the region. कौन सा region आएगा वो आपको सिर्फ दिखाना है. तो here it is A union B अगर दिखाना है तो here is A, here is B and that is U. A union B में कौन आ जाएगा? ये पूरा का पूरा दोनों सर्कल का सेट. तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? तो उसके सिवाय का जितना भी है वो, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट में कौन सा आता है? जो यूनियन में नहीं है वो. तो ये सारा पोर्शन जो है वो यूनियन में नहीं है. यूनियन में ये अंदर का पोर्शन आता है, उसके सिवाय बाहर का जो पोर्शन है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा. अंडरस्टैंड दैट? तो आपको एलिमेंट नहीं दिए हैं, सो डोंट राइट द एलिमेंट. You just show the region, represent the region. Then the next is A complement intersection B complement. Second, A complement intersection B complement. So first of all, here is A, here is B, here is union. पहले आप ये बताइए कि A कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? A नहीं आएगा, ये बाहर का सारा आ जाएगा. राइट? B कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? B के सिवाय बाहर का सारा आ जाएगा. अब दोनों का जब इंटरसेक्शन लेना है तो कॉमन रीजन लेना है. यू अंडरस्टैंड दैट? कॉमन रीजन लेना है तो क्या आएगा? ये कॉमन रीजन है. कैसे पता चला? सपोज हियर इज द A,
ए कॉम्प्लीमेंट में ये ए नहीं लेना है, बाकी का सारा मैंने ले लिया, ये है ए कॉम्प्लीमेंट। अभी बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी नहीं लेना है, ये बी को हम नहीं लेंगे, बाकी का सारा ले लेंगे, ये लेंगे, राइट। अब इंटरसेक्शन में जो दोनों में है, ए कॉम्प्लीमेंट में है और बी कॉम्प्लीमेंट में से कॉमन रीजन आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट में दोनों में जो आएगा वो ही हमें यहाँ पे लेना है। तो दोनों में आया, ऐसा कैसे पता चला? जिसमें क्रॉस हुआ, जो क्रॉस हुआ वो कॉम्प्लीमेंट में आएगा, एंड दैट्स व्हाई हियर इज क्रॉस सिर्फ बाहर के रीजन में हो रहा है, एंड देयरफॉर ये बाहर का जो रीजन है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। सो दैट हियर यू कैन सी दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का या तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रिमेन सेम। दैट मीन्स व्हाट? A union B complement is equal to A intersection B आता है। The De Morgan's law is true here. Understand that? Yes. Then the question number 3 में है A intersection B complement. Third, A intersection B complement. So if you want to represent that, here is A, here is B and here is U. अब A इंटरसेक्शन B में कौन सा रीजन आएगा? ये जो कॉमन रीजन है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? उसके सिवाय का सारा, मतलब कि ये नहीं लेना है, तो हियर इट इज, ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये हम निकाल देंगे, बाकी का सारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, सिर्फ बीच वाला कॉमन रीजन नहीं आएगा। देन द फोर्थ वन इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं बाकी का पूरा, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी नहीं और बाकी का पूरा। तो जो दोनों में है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, here U, this one is A, this one is B. Now A complement, this is A complement, right? This is A complement. अभी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि बी नहीं लेना है बट ये लेना है, तो दैट मीन्स हियर दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। अभी दोनों का यूनियन मतलब तो जो एक में है वो भी यूनियन में तो आ ही जाएगा, तो कौन सा ऐसा है जो दोनों में से एक में भी नहीं आया? ये बीच वाला पोर्शन जो है वो नहीं आएगा, दैट इज व्हाट ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन बी है, तो ये आएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में बाहर का आएगा। ए डैश यूनियन बी डैश है तो दोनों में से एक में आता है, वो भी यूनियन में तो आ ही जाता है, दैट मीन्स ये पूरा आएगा, सिर्फ ये बीच में जो है वो नहीं आएगा। तो ये दोनों का रीजन सेम आ गया, कौन सा नहीं आ रहा है? सिर्फ ये बीच वाला नहीं आ रहा है। That means the De Morgan's law is true. Again, the second law क्या बोलता है? A intersection B complement, A complement union B complement होता है। So this way you can draw the Venn diagram. आपको कैसी सिचुएशन होनी चाहिए वो पता चल गई है, जैसे how to draw the Venn diagram, right? If any doubt then you can ask me, but we will go ahead now. That is exercise 1.5 question number 6.
Exercise 1.5, question number 6. Here, U be the set of all the triangle in a plane. U be the set of all triangle in a plane. If A is the set of all triangle, if A is the set of all triangle with at least one angle different from 60. With at least one angle different from 60. What is a complement? पहले तो A क्या है? That you have to think. A is the U with the set of all triangles. U में all triangles आ गए, right? Here it is given U set of all triangles, right? Then A is the set of all triangle with at least one angle different from 60. एक एंगल तो ऐसा होना ही चाहिए जो 60 नहीं है. दो एंगल 60 हो सकते हैं, तीनों एंगल 60 नहीं हो सकते. तो यू नो दैट कि सपोज हियर इज 60, हियर इज 60, पर ये 60 नहीं है, ऐसा होगा. एटलीस्ट वन डिफर फ्रॉम 60, तो ये वन डिफर फ्रॉम 60 या तो दोनों 60 से डिफर है, पर जब तीनों और तीनों 60 से डिफर है तो भी चलता है. वन इज नॉट 60, ये दोनों 60 है, चलेगा. टू इज नॉट 60, डिफर फ्रॉम 60 का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट फ्रॉम 60. एटलीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम 60, एक 60 नहीं है. ऐसे सारे ट्राइंगल इसमें आ गए, मतलब कि दो 60 है पर एक 60 नहीं है एंगल, तो वो सारे अंदर ए में आ गए. फिर एटलीस्ट बोला है तो दो नॉट 60, टू ट्राइंगल के तीन एंगल में से टू इज नॉट 60, तो टू इज नॉट 60, एक 60 है, चलेगा. बट ऑल थ्री 60 नहीं हो सकते. यू नो दैट बिकॉज एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 बोला है. तो अगर ए जो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल with at least one angle different from 60. At least one angle different from 60 मतलब one angle 60 होगा, चलेगा. two angle 60 होगा, चलेगा. But all the three angle 60 नहीं हो सकते. तो फिर A कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? That is set of all triangles with all angle 60 degree. क्यों? क्योंकि इसमें all angle 60 डिग्री वाले नहीं है. कौन से है? या तो एक एंगल 60 वाला होना चाहिए या तो दो, पर तीसरा एंगल 60 वाला हो नहीं चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट एक एंगल तो 60 से डिफर होना ही चाहिए. दैट मीन्स जो ऑल एंगल 60 डिग्री है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा. यू अंडरस्टैंड दैट? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल इन द ब्लैंक. क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks. Here is okay. First, A union A complement, A intersection A complement. Third, 5 intersection A and 4 U dash intersection A. Now you tell me A union A complement. अगर A में जो नहीं है वो A complement में आ जाएगा. अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो U बन जाएगा. That we have already discussed. So here A union A complement is U. Then A intersection A complement. A intersection A complement is null set. क्यों?
क्योंकि ए एंड ए डैश डिसजॉइंट सेट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देन फाई डैश इंटरसेक्शन ए, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, दैट वी हैव ऑलरेडी रिटर्न इन द नोट्स, सो दैट फाई कॉम्प्लीमेंट इज यू, राइट, एंड यू इंटरसेक्शन ए। अब एग्जांपल लेके चेक कीजिए, हियर इज 1 2 3, ए इज 1, चलो U इंटरसेक्शन A क्या होगा, कॉमन एलिमेंट होगा 1, दैट इज A, एंड A यूनियन A क्या होगा 1 2 3, दैट इज U। मतलब कि जब आप U के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो सेट इटसेल्फ आता है, और U के साथ किसी सेट का यूनियन लेते हैं तो U ही रहता है, दैट यू कीप इन माइंड। तो हमें पूछा है फाई डैश दैट इज यू इंटरसेक्शन ए, तो क्या आ जाएगा ए, और फाई डैश एक ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम, फाई डैश यूनियन ए, फाई डैश इट्स यू यूनियन ए, तो क्या आ जाएगा आंसर यू, राइट। देन यू कॉम्प्लीमेंट दैट इज व्हाट, मैंने आपको बोला कि यू का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, नल सेट इंटरसेक्शन ए, बोलो क्या आता है, नल सेट इज द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन एलिमेंट कहाँ से लाएंगे, सो दैट इज व्हाट, नल सेट। बट अगर नल सेट यू डैश यूनियन ए, यू डैश इज द नल सेट, यूनियन अगर लेंगे तो सेट इटसेल्फ आएगा, यू अंडरस्टैंड दैट, नल सेट यू का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होता है, तो null set intersection A is the null set and null set union A is the set itself. So ये जो 1 मार्क क्वेश्चंस है